unknowingly ज़्यादा इग्नोर कर रही है, they are not bothered about, और once we have the symptom then we start scrolling down, कुछ करना है कि नहीं करना है. However, this was the result. Majority population who responded was 36 to 45 years age group. Next slide. Then if we see male versus female, so इस सर्वे ने ये बताया कि जो फीमेल रिस्पोंडेंट्स थे, they were majorly responding to this survey and 44% participants were male. Again, do we consider that males are more stressed out, busy in their work schedule, they don't even feel it necessary to respond to such kind of things. Next slide. अगर हम देखें respondents city wise response में, so Hyderabad recorded the highest participation. Again, is it highlighting more awareness, more stress towards education system and all? या फिर we can draw any other inference also, the house is open. And this Hyderabad thing was followed by Kochi, again had a better response than Bangalore, Calicut, Mumbai. Surprisingly, हमारा शहर इन 4-5 में कहीं नहीं आया जिन्होंने रिस्पॉन्ड करने की भी ज़रूरत समझी इसको. And it was behind these cities, you can see very well. Next slide. So क्वेश्चन पहला ये था कि क्या एक्सरसाइज करते हैं. अगर इस हाउस में मैं पूछूं हाउ मेनी ऑफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, व्हेन आई से रेगुलर दैट डजंट मीन एवरी डे एंड 2 to 3 times a day, इट मीन्स एटलीस्ट मोर देन 3 times a week. कौन कौन करते हैं एक्सरसाइजेस? 3 या 3 से ज़्यादा बार एक हफ्ते में, दैट इज कंसिडर्ड एज द रेगुलर एक्सरसाइजिंग. यू कैन सी द रेज ऑफ हैंड्स. So that very well concords with the survey. So 54% do not exercise regularly. ये जानते हुए कि सरकार ने कितने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखे हैं, मुझे लगता है बाबा रामदेव भी कह के थक गए होंगे, तो वो तो अलग ही चीज़ है. But still people don't find time or they ignore their conscious to accept that कि ये भी एक तरीका है अपनी हेल्थ को बचाने का. 45% report exercising at least 3 times a week, वो भी रोज नहीं. Next slide. The second question was, आप कितनी बार घर से बाहर जाके खाना खाते हैं? तो results are well explanatory. पहले आज से 8-10 साल पहले बाहर खाना खाने ना ओकेजन्स पे जाते थे, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह है. Now you will get surprised that it has become a routine to eat outside and occasional to eat at home. So it's a luxury. किसी का घर बनाने का किसी दिन मन कर रहा है तो उसका मतलब मेरी छुट्टी है, फ्री है, कि हम घर पे बना सकते हैं. So you can see where are we heading. So 48.5% consumed outside or packaged food few times a week and 30% तो almost daily. Next slide. Third question was, do you smoke or consume tobacco? So I was happy to see that majority do not smoke or consume. At least वो awareness, वो consciousness हमारे अंदर आना शुरू हो गई है कि this is dangerous for health. So that was very heartening to see, but still 35% report that they still do. इतने pollution के बाद जहाँ 15 सिगरेट को वैसे inhale कर लेते हो बिना पिए भी, उसके बावजूद अगर आप कर रहे हो ना, तो आप अपने साथ क्या कर रहे हो, you can very well see. Next slide. So the next question was कि gastric problems अगर आती हैं, and simple gastric problem, acidity है, indigestion है, blood in stool तो चलो एक obvious symptom हो गया, इनके अंदर आप क्या करते हैं? So 44% people told that they take over the counter medicine or on their own medicines. 43% told home remedies, which is still good, which is still okay to begin with, but for how long? कब तक और कितना? ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली हर एसिडिटी के लिए तो डॉक्टर के पास भागना शायद पॉसिबल भी ना हो और ज़रूरी भी ना हो, बट क्या कोई लिमिट है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम ऐसे चलती जा रही है तो कब आपको इंटरवीन करना है? दैट मैसेज वी नीड टू डिस्कस ऑन दिस स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो बाउल चेंज अगर है हैबिट्स का, जैसे डॉक्टर मनीष ने कहा कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी डायरिया लग जाता है, तो उसमें मतलब कितना वीक्स का चेंज है या क्या करेंगे, ये ऑप्शन अगर दी जाए तो व्हाट वाज द पीपल्स रिस्पॉन्स. सो 50% रिलाई ऑन ओवर द काउंटर मेडिकेशन. डायरिया है,
फेंटोसिड ले लिया, ओफ्लॉक्स ले लिया, ये तो सारे नाम आप भी जानते होंगे आज की डेट में। दीज आर ओवर द काउंटर मेडिकेशन। आप केमिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेगा ये 3 दिन ले लो, आप ठीक हो जाओगे। सो दैट इज हाउ दिस रिस्पॉन्स वॉज। एंड 35% पेशेंट्स प्रेफर्ड एडजस्टिंग देयर डाइट, क्योंकि हम आज भी ये बिलीव करते हैं कि एलोपैथी अच्छी चीज़ नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ये मिथ निकाल दीजिए। एवरी पैथी हैज़ इट्स ओन प्रोस एंड कॉन्स, एंड सो एलोपैथी हैज़। आँख बंद कर लेने से तकलीफ भागेगी नहीं, उसको तो फेस ही करना पड़ेगा। सो 35% जो लाइफ स्टाइल और एडजस्ट करते हैं डाइट में, वो शुरू से करना है। मुसीबत आने पे तो हेल्प सीख करनी है, ये तो चलेगा पैरेलली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ब्लड इन स्टूल, सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं कि नहीं? 61% अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, 25% पीपल टोल्ड दे स्टिल सेल्फ मेडिकेट, एंड 12% वर अनश्योर क्या करना है। दवाई लेनी भी है कि नहीं, कि इसको 2-4 बार और देख लेते हैं कि कब तक ब्लीडिंग होती है, टिल द टाइम वी बिकम सिम्प्टोमेटिक। दैट वाज सरप्राइज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा ये तो पूछा गया कि भाई डॉक्टर के पास जाने से कौन रोक रहा है। सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है आजकल, सबके पास फैसिलिटीज है, गूगल अंकल है सब कुछ बताने के लिए, कि ये सिर्फ चैट जीपीटी तो और भी बड़े हैं, तो वो सब तो आपको सब कुछ बताते हैं। एंड स्टिल आई मीन यू डिडंट फाइंड अ सॉल्यूशन टू गो टू डॉक्टर। सो सर्वे टोल्ड दैट 30% सेड देयर इज अ लैक ऑफ टाइम। हमारे पास अपने शरीर के लिए टाइम नहीं है, जिसके लिए आप दिन रात भीड़ में चल रहे हो, कमा रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। 30% के पास टाइम भी नहीं है उसको देखने के लिए। एंड 27% हैड अ फियर कि कुछ गलत ना निकल आए। अगेन, आंख बंद करने से परिस्थिति नहीं हटती है, उसको तो सोल्यूशन चाहिए।